So in last class we discussed about n factor calculation. वो clear n factor redox reaction में how we calculate it when more than one things are getting oxidized or reduced or such, correct? So today let's start with redox titration, how we will do a volumetric numerical. First of all let's get clear what is a titration. वो सबको clear है. Our approach in titration is we have some solution in a beaker, correct? Let's call this as solution 1 and some other solution we take in a burette. Let's call this as solution 2. This solution 2 we add drop wise in solution 1 and we keep on adding this till when we add till some indicator tells us the end point, and that is usually by color change. So the moment indicator changes its color, end point is indicated, we will close the burette, correct? तब तक burette से कितना amount आया, we can measure the volume. Molarity of this solution is known, molarity of this, volume of this, correct? So what will be our approach here? Till end point is reached. End point is reached means this and this have reacted completely. So what we will say? Milli equivalents in solution 1 are equal to milli equivalents in solution 2. Clear? So this approach we will take throughout redox titration. And how we will calculate milli equivalents of anything? कैसे calculate होंगे milli equivalents? It can be weight by equivalent weight into 1000, or it can also be equivalent weight. क्या होता है? Molecular weight by n factor. तो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो weight by molecular weight क्या हो जाएगा? Moles, correct? So I can say millimoles into n factor. Millimoles को कैसे लिख सकते हैं? Molarity into volume in milliliters into n factor. Also we can define a term called normality, which is nothing but, how we will define normality? Normality is number of equivalents divided by volume in liters, correct? So milli equivalents we can say will be normality into volume in milliliters. तो इनमें से किसी भी वे में we can calculate milli equivalents depending on the information given in the problem, and then in the titration milli equivalents of both the things in beaker and in burette will be equal. Clear? This will be our approach in titrations. So note this much down. So let's see how we will apply this in problems. Let's see a couple of examples of applying this. Okay. So write first example. A sample of Ki, a sample of Ki is dissolved in, a sample of Ki is dissolved in 1 liter water. A sample of Ki is dissolved in 1 liter water. Okay. 100 ml portion of this solution, 100 ml portion of this solution is titrated with 100 ml portion of this solution is titrated with 0.1 molar 0.1 molar
एसिडिक परमैंगनेट सॉल्यूशन 0.1 मोलर एसिडिक परमैंगनेट सॉल्यूशन। ठीक है, 38 ml of permanganate solution, 38 ml of permanganate solution is required, 38 ml of permanganate solution is required to reach the end point. 38 ml of permanganate solution is required to reach the end point. Find the weight of sample. Find the weight of sample. ठीक है, तो अप्रोच देखो इसको. Just pay attention on board for few examples. So we took a KI sample. ठीक है, how much sample we took we do not know, unknown है, वही कैलकुलेट करना है what is the weight of sample taken. ठीक है, और इसको कितने वाटर में डिसॉल्व कर दिया हम लोगों ने, 1 लीटर. करेक्ट. तो मान लो स्टार्टिंग का हमारा ये KI x मिलीमोल्स था. ठीक है, और इसको हम लोगों ने 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर दिया. फिर क्या कर रहे हैं, इसका एक 100 ml का पोर्शन ले रहे हैं. 100 ml का पोर्शन मतलब 1/10. तो x मिलीमोल्स हम लोगों ने कितने में डिसॉल्व किए थे, 1 लीटर में. तो 100 ml में कितने होंगे, x/10. सो लेट्स वी आर टेकिंग अ 1/10 पोर्शन. ठीक है, और इस 1/10 पोर्शन को हम लोग किससे रिएक्ट करा रहे हैं, एसिडिक परमैंगनेट, दैट इज KMnO4 सॉल्यूशन. KMnO4 सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी है 0.1 मोलर, और कितना वॉल्यूम लग रहा है इसका, 38 ml. तो ये दोनों चीजें आपस में कंप्लीटली रिएक्ट करेंगी. तो बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस व्हाट आई कैन से, इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स सेम होंगे. तो रिडॉक्स टाइट्रेशन की किसी भी प्रॉब्लम में सबसे पहला स्टेप होगा हम लोगों का इनके n फैक्टर्स कैलकुलेट करना. तो KMnO4 मतलब MnO4 माइनस आयन इन एसिडिक मीडियम मेक्स Mn2 प्लस. ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए. कॉमन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या प्रोडक्ट बनाते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक की प्रॉब्लम में बताया नहीं जाएगा. दैट यू शुड नो. बुकलेट में टेबल दिया हुआ है कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स थ्योरी में, तो दैट ऑल यू हैव टू रिमेंबर. करेक्ट. तो MnO4 माइनस का क्लियर है, एसिडिक मीडियम में इट मेक्स Mn2 प्लस. क्या हो जाएगा इन फैक्टर फिर इसका, मैंगनीज +7 की स्टेट से +2 की स्टेट. तो व्हाट विल बी इट्स एन फैक्टर, तो इसके ऊपर लिख लेते हैं, इसका एन फैक्टर है 5. रिड्यूस हो रहा है तो इधर KI में I माइनस विल गेट ऑक्सीडाइज. क्लियर. I minus again is a very common oxidizing reducing agent. It makes I2. -1 की स्टेट से it is going to 0. What will be n factor? -1 से 0 1. तो इसका n factor 1. So let's equate their millimoles. सॉरी मिली इक्विवेलेंट्स. तो इसके कितने मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे, इसके मिली मोल्स हो गए x/10 इंटू n फैक्टर 1 विल बी इक्वल टू, इसके कितने मिली इक्विवेलेंट्स हो गए, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर. क्लियर. तो x कितना आ जाएगा यहाँ से
190 मिलीमोल्स। अब वेट निकाल सकते हो KI का उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके, तो सैंपल का वेट पता चल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? चलो नोट करो इसको। कर लिया नोट? चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। A sample of KI, a sample of KI is dissolved in, a sample of KI is dissolved in 100 ml water. Sample of KI is dissolved in 100 ml water, and then 200 milliliters of 0.1 molar acidic permanganate solution, 200 ml of 0.1 molar acidic permanganate solution is mixed in it. ठीक है? 50 ml of the resulting solution, 50 ml of resulting solution requires 20 ml of 0.2 molar 20 ml of 0.2 molar oxalate solution for back titration. 20 ml of 0.2 molar oxalate solution for back titration. Find the weight of sample. Find the weight of sample. देखो इसमें क्या हो रहा है? What do we mean by back titration? पहले तो इस वर्ड का मतलब भी समझो। एक नॉर्मल टाइट्रेशन क्या थी? We took solution 1 in beaker, correct? और solution 2 in burette, titrated. And our equation was milli equivalents of 1 are equal to milli equivalents of. अब बैक टाइट्रेशन में क्या है? दिस इज नॉर्मल टाइट्रेशन. बैक टाइट्रेशन में सोल्यूशन 1 वी टेक इन बीकर, सोल्यूशन 2 वी टेक इन अनदर बीकर. वी डू नॉट टेक इट इन ब्यूरेट. ड्रॉप वाइज नहीं ऐड कर रहे, दूसरे बीकर में लेके एक साथ पूरा का पूरा ऐड कर दिया. सोल्यूशन 2 बहुत ज्यादा ऐड कर दिया, जितना चाहिए उससे ज्यादा ऐड कर दिया, करेक्ट? तो उसके बाद इस बीकर में क्या बचेगा? सोल्यूशन 2 बचा रह जाएगा ना. 2 बहुत सारा ऐड किया एक्सेस में, तो 1 से तो रिएक्ट कर लेगा, जितना 1 है खत्म हो गया, उसके बाद भी 2 बचा रह जाएगा. क्लियर? अब हम कोई सोल्यूशन 3 को ब्यूरेट में लेके उसको इस बचे हुए 2 के साथ टाइट्रेट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज बैक टाइट्रेशन. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द practical aspect of doing a back titration? Why we do back titration? तो फिर पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू रिएक्टेड विद सॉल्यूशन. My question is why we are not doing a normal titration? Why we are wasting things? Why we are doing a back titration? Anybody can think of a reason? सर क्योंकि फिर सॉल्यूशन 1 में इंडिकेटर भी होगा, मतलब इंडिकेटर का
पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सोल्यूशन वन में इंडिकेटर एक कलर ले देगा। The only reason why we will do a back titration is कि solution 1 और solution 2 के reaction के लिए we do not have a suitable indicator. Solution 1 मान लो बहुत डार्क ब्राउन कलर की चीज है तो उसमें और किसी इंडिकेटर का कलर चेंज दिखेगा ही नहीं. We will first have to finish off 1 and then 2, 3 के titration के लिए we have a indicator. Clear? So in those situations where a suitable indicator is not available with us, we will go for back titration. Correct? तो चलो इसमें क्या अप्रोच हो रही है फिर से. अब जरा कि माइंड मैप बनाते हैं इसका कैसे प्रोसीड करेंगे. वी हैड क्या था हमारे पास सबसे पहले के आई कितना था अननोन. x मिलीमोल्स मान लेते हैं. 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया. क्लियर? कोई डाउट? किससे रिएक्ट कराया इसको मिक्स कराया किससे? KMnO4 से मिक्स कराया. कितना? 200 ml 0.1 मोलर. KMnO4 बचा रह जाएगा. ये कितना वॉल्यूम हो गया टोटल? इससे हमने कितना निकाला? 50. मतलब जो KMnO4 बचा था उसका कितना पोर्शन हम लोगों ने निकाला? 1/6 निकाला. करेक्ट? और उसको किससे रिएक्ट कराया? ऑक्सलेट से. कितना? 40 ml 20 ml 0.2. तो ये सिचुएशन है हमारी. क्लियर है ये सबको? तो जैसे इसमें हम लिख रहे थे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ 1 आर इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ 2. कैन आई राइट द सेम थिंग हियर? कैसे लिखेंगे आप? इसमें 2 दो चीजों से रिएक्ट कर रहा है. 1 से और 3 से. So total 2 के मिली इक्विवेलेंट्स will be मिली इक्विवेलेंट्स of 1 plus मिली इक्विवेलेंट्स of 3. Clear? तो चलो कैसे लिखेंगे अब इसमें इक्वेशन जरा देखते हैं. KMnO4 के अब n फैक्टर्स सबसे नेक्स्ट स्टेप n फैक्टर्स लिखना. एसिडिक KMnO4 का तो n फैक्टर 5. 1 oxalate you should know. Oxalate in acidic medium makes CO2. Carbon goes from +3 to +4 state. N factor is 2. Clear? कैसे लिखी जाए इक्वेशन अब इसकी बताओ. KI के कितने मिली इक्विवेलेंट्स होंगे? X into प्लस ऑक्सलेट के 20 into 0.2 into 2 into 6. क्योंकि इतना ऑक्सलेट तुम्हें केवल 1/6 के लिए लग रहा था. करेक्ट? तो पूरे रिमेनिंग सोल्यूशन को टाइट्रेट करते अगर तो इसका 6 टाइम्स लगता. क्लियर? दिस इज इक्वल टू टोटल ऑफ KMnO4 कितना होगा वो? 200 into 0.1 into 5. यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगी? x is equal to कितना हो जाएगा ये? सॉरी x is equal to हाँ ये कितना होगा? 20 into 5 100 minus 48. करेक्ट? समझ में आया? कोई डाउट? We mix this KMnO4 in with this Ki. Some moles of KMnO4 will react with Ki and some will be left out. And that all whatever are left out moles, they are present in 300 ml of solution. We were taking a 50 ml portion out of that and reacting it with oxalate. So whatever were remaining KMnO4, we were only taking 1/6 of that 50 ml out of 300
तो रिमेनिंग KMnO4 के 1/6 पार्ट के लिए we require this much oxalate. So for entire remaining amount we will require 6 times. देखो अगर और डिटेल में समझना है तो ऐसे थोड़ा सा समझ सकते हैं. प्लीज सी है 10 मिनट. KMnO4 टोटल हम लोगों ने इतना डाला, करेक्ट. उसमें से कुछ यहाँ पे रिएक्ट होगा और कुछ यहाँ पे रिएक्ट होगा, करेक्ट. तो मान लो इस ब्रांच में KMnO4 reacting is A, करेक्ट. क्लियर. बाकी बचा रह गया इज B, तो रिमेनिंग इज B. और B का कितना पोर्शन यहाँ रिएक्ट हो रहा है? 1/6. तो यहाँ रिएक्ट कितना होगा फिर एक्चुअली? B/6. तो इफ यू वांट यू कैन सेपरेट इट आउट एंड आल्सो डू लाइक दिस. देखो A यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है ना, A मिलीमोल्स. तो इसके और इसके मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे. कैसे लिखेंगे वो इक्वेशन? A into 5 is equal to X into 1. यहाँ पे कैसे लिखेंगे इन दोनों के इक्वल? B बचे थे उसका 1/6 रिएक्ट हो रहा है, तो B/6 into 5 is equal to 20 into 0.2 into 2, करेक्ट. और तीसरी इक्वेशन, इन दोनों का टोटल तो इतना ही रहेगा ना, तो A plus B is 200 into 0.1, तो A plus B is 20. यहाँ से B कितना आ जाएगा? This will be 8, 48/5, करेक्ट. सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो A कितना आ जाएगा? A is X/5, और ये वहां से पहले ये निकाल लेते हैं. A is X/5 which will also be equal to 20 minus 48/5. So X यहाँ से आ जाएगा 100 minus 48, करेक्ट. सर हाँ, सर हम लोग का वो बॉक्स बनाया था ना आपने KMnO4 का, उधर से डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर वापस बता सकते? so what we had discussed कि KI में पहले KMnO4 मिक्स किया, करेक्ट. तो सारा KI KMnO4 से रिएक्ट हो जाएगा, उसके बाद भी KMnO4 बचा रहेगा. एंड दिस टोटल इज हाउ मच ml? 300. हम उसका एक फिर 50 ml पोर्शन ले रहे थे, मतलब हम 1/6 लेके उसको ऑक्सलेट से रिएक्ट करा रहे थे. So our equation here will be milli equivalents of this plus this have to be equal to milli equivalents of this, that we are writing. तो इसके कितने मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे? X into 1. इसके कितने मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे? 20 into 0.2 into 2. लेकिन ये 1/6 के लिए चाहिए थे, तो टोटल बचे हुए के लिए कितना होगा? into 6. That will be total milli equivalents of KMnO. A sample of KI, a sample of KI is dissolved in 100 ml water. And then 200 ml of, and then 200 ml of 0.1 molar acidic permanganate solution is mixed in it. 200 ml of 0.1 molar acidic permanganate solution is mixed in it. The resulting solution is collected and
The resulting solution is collected and it is made basic. And it is made basic. Then it is back titrated with. Then it is back titrated with 0.1 molar oxalate solution. 0.1 molar oxalate solution. (45 ml of oxalate solution is required. 45 ml of oxalate solution is required to reach the end point. Find the weight of sample. ठीक है? तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम ही है. क्या क्या डिफरेंसेस हैं? KI का सैंपल लिया x मिलीमोल और इसको कितने में डिसॉल्व किया? 100 ml में. किससे रिएक्ट कराया? एसिडिक KMnO4 से. 200 ml 0.1 मोल. इसका इन फैक्टर क्या है? 1. इसका 5. करेक्ट? KMnO4 बचा रह गया. बचे हुए KMnO4 को किससे रिएक्ट कराया? ऑक्सलेट से. करेक्ट? 45 ml. इसकी मोलैरिटी दी थी ऑक्सलेट की 0.1. डिफरेंस ये हो गया, पहला वाला रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा था और दूसरा वाला रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है. MnO4 माइनस बेसिक मीडियम में मेक्स MnO2 and its N factor becomes here. Oxalate in basic medium will make carbonate plus 3 से plus 4. Still N factor इसका तो 2 ही रहता है. तो ये 2 हो गया, ये 3. Correct? So now you can see the situation we have in hand. यार वो डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से रिपीट कराएंगे. कनेक्ट कर लो. चलो जब तक बाकी लोग इतना नोट करो. तो we were on discussion here. KMnO4 का दो सेपरेट रिएक्शंस में N फैक्टर अलग अलग है. तो now can we write such a equation? No. We have to write milli equivalence of this plus this is equal to milli equivalence of this. But N factor कौन सा यूज करेंगे? दो रिएक्शन में अलग अलग है. So here we will have to go in such approach. What? Let's say A millimoles of KMnO4 are reacting here and B millimoles are reacting here. तो इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट इक्वेट करो. क्या इक्वेशन मिलेगी? A into 5 is x into 1. इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट इक्वेट करो. B into 3 is 45 into 0.1 into 3. और तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? into 2. और तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? A plus B is equal to 200 into. क्लियर? समझ में आया? तो ये N फैक्टर वाली कैलकुलेशंस पे we have to be very careful.
next example. A sample of Ki, a sample of Ki is dissolved in 100 ml water. A sample of Ki is dissolved in 100 ml water and titrated with 0.1 molar and titrated with 0.1 molar acidic permanganate solution. Titrated with 0.1 molar acidic permanganate solution. The liberated iodine. Repeat. A sample of Ki is dissolved in 100 ml water and titrated with 0.1 molar acidic permanganate solution. The liberated iodine requires 40 ml of 0.1 molar acidic thiosulfate solution. 40 ml of 0.1 molar acidic thiosulfate solution for complete reaction. Find the weight of sample. Find the weight of sample. अब इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है? Let's see. We have a sample of Ki, let's say x millimole. Correct? This is reacting with MnO4 minus. Correct? इसकी मोलैरिटी हम लोग को दी है 0.1. इनके रिएक्शन से क्या बन रहा है? इनके रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? I2. इस I2 को हम लोग रिएक्ट किससे करा रहे हैं? Thiosulfate, H2O3 2 minus. In acidic medium, H2O3 2 minus makes H4O6 2 minus. Sulfur goes from 2 to 2.5 state and N factor is of 1. Yep. Thiosulfate कितना लग रहा है? 40 ml 0.1 मोलर. इसका N factor है 1. इसका N factor है 1. इसका N factor है 5. Now, what was our law of equivalence? In a chemical reaction, equal equivalents of everything are involved. तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इन दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे और इन दोनों के रिएक्शन से ये बन रहा है तो इसके भी इक्विवेलेंट्स इसके बराबर होंगे. फिर दिस इज रिएक्टिंग विद दिस तो इन दोनों के भी बराबर है तो डायरेक्टली आई कैन से दिस इज इक्वल टू दिस. करेक्ट? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Ki विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ थायोसल्फेट. तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? x into 1 is 40 into 0.1 into 1. Clear? चलो इसको नोट करो.
यार I2 का इक्वल कैसे होगा? ए प्लस चलिए लोकल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या था? ए प्लस बी गोज टू सी प्लस डी. Equivalents of A are equal to B are equal to C are equal to D. हो गया? चलो एक और एग्जाम्पल. A sample of Ki, a sample of Ki is dissolved in 100 ml water. A sample of Ki is dissolved in 100 ml water and titrated with 0.1 molar acidic permanganate solution. Titrated with 0.1 molar acidic permanganate solution. The liberated iodine is reacted with 0.1 molar acidic dichromate solution. The liberated iodine is reacted with 0.1 molar. क्या ऐसा एक मिनट. The liberated iodine is reacted with 0.1 कट कर दो. The liberated iodine is reacted with dichromate solution. Acidic dichromate solution. 0.1 नहीं दिया बस. That information I want to recall. Is reacted with dichromate solution, which converts it to IO4 minus. Which converts it to IO4 minus. 25 ml of same dichromate solution. 25 ml of same dichromate solution. Thus previous line I am repeating. The liberated iodine is reacted with acidic dichromate solution, which converts it to IO4 minus. The required, एक लाइन बीच में और इंसर्ट करो. The required dichromate for complete reaction of iodine. The required dichromate for complete reaction of iodine is 20 ml. The required dichromate for complete reaction of iodine is 20 ml. ठीक है. अब आगे लिखते हैं. 25 ml of same dichromate solution. 25 ml of same dichromate solution requires 40 ml of oxalate solution. Requires 25 ml of same dichromate solution requires 40 ml of oxalate solution having a molarity of 0.1. For complete reaction. Find the weight of sample. और फिर से एक बार जरा सिस्टमैटिकली स्टार्ट करते हैं इसमें. सबसे पहले हमारे पास क्या है? KI कितना है?
मोलैरिटी नहीं मालूम तो वॉल्यूम लिखने से क्या मतलब है, x मिलीमोल। किससे रिएक्ट कराया, MnO4 माइनस, इससे क्या बना, I2। I2 को किससे रिएक्ट कराया, डाइक्रोमेट से, Cr2O7 2। इससे क्या बना, IO4 माइनस, करेक्ट। डाइक्रोमेट यहाँ कितना लगा, 20 ml, मोलैरिटी दी नहीं है कुछ M1। डाइक्रोमेट यू शुड नो always make Cr2O7 2 minus, always make Cr3 plus 6 से +3 की स्टेट में n फैक्टर इज 6, तो इसका n फैक्टर हो गया यहाँ 6। डाइक्रोमेट के बारे में और इंफॉर्मेशन दी है क्या, एक दूसरे रिएक्शन में सेम सॉल्यूशन का डाइक्रोमेट सेम सैंपल से लेंगे तो मोलैरिटी इन दोनों की सेम होगी, और इसका 25 ml लेके हम लोग किससे रिएक्ट करा रहे हैं, ऑक्सलेट से। ऑक्सलेट से कितना लग रहा है, ऑक्सलेट 40 ml 0.1 मोलर, एन फैक्टर ऑक्सलेट का 2, डाइक्रोमेट का तो 6। तो पहले इन दोनों के मिली इक्विवेलेंस इक्वेट कर लें, क्या आ जाएगी इससे इक्वेशन, 25 n1 into 6 is 40 into 0.1 into 2, तो कितना हो जाएगा ये, n1 कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 by 150, करेक्ट। अब क्या करें, ये मोलैरिटी मिल गई, फिर इसको और इसको इक्वेट कर लें, नहीं कर सकते। दिस इज द पॉइंट की ऑल जेई प्रॉब्लम्स इसी टाइप से आते हैं। वी विल डू प्रीवियस जेई प्रॉब्लम, दिस इज अ टिपिकल जेई सब्जेक्टिव प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिव पेपर में तो नहीं आ रहे। इस रिएक्शन में देखो Ki का इन फैक्टर कितना है, I2 का इन फैक्टर क्या है, पहले रिएक्शन में जब Ki से I2 बन रहा है -1 से 0 आ रहा है ना, तो कितना इंक्रीज है एक आयोडीन में 1 का, और इसके एक मॉलिक्यूल में कितने आयोडीन है 2, तो इस रिएक्शन में I2 का इन फैक्टर क्या है 2, और सेकेंड रिएक्शन में I2 से क्या बन रहा है, IO4 माइनस, 0 से इट इज कमिंग टू +7, एक आयोडीन में कितना चेंज है 7, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने आयोडीन है 2। Please try to listen this thing very carefully. इसके और इसके मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल है, इसके और इसके मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल है, लेकिन इसके और इसके मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल नहीं है, because milli equivalents of I2 in reaction 1 and milli equivalents of I2 in reaction 2 are not equal. Because I2 का दोनों रिएक्शंस में n फैक्टर अलग है। यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया था बहुत इजीली, देखो प्रीवियस प्रॉब्लम से जरा कंपैरिजन क्लियर रखो। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्टली इसको इक्वेट किया था ना, क्योंकि इसका इन फैक्टर यहाँ पे भी 2 था और यहाँ पे भी 2 था, दोनों जगह इसका इन फैक्टर सेम था, तो दोनों रिएक्शन में इसके मिली इक्विवेलेंट्स सेम होंगे। अगर मान लो I2 के Y मिली मोल्स हैं, मोल्स तो कंजर्व रहेंगे ना, जितने पहले रिएक्शन में मोल्स बनेंगे उतने ही मोल्स दूसरे रिएक्शन में रिएक्ट होंगे, तो अगर Y मिली मोल्स हैं तो पहले रिएक्शन में इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे 2Y, और दूसरे रिएक्शन में कितने मिली इक्विवेलेंट्स होंगे 14Y, एन फैक्टर बदल गया है। क्लियर? इस प्रॉब्लम में क्या होता, दोनों जगह 2y थे, तो डायरेक्टली हम लोगों ने ये इक्वेट कर लिया। तो अब कैसे इक्वेशन लिखते हैं आगे, इसके और इसके मिली इक्विवेलेंट सेम है, कैसे होगी वो इक्वेशन, y into 14 is equal to 20 into m1 कितना है 8 by 150 into 6, क्लियर? कितना हो जाएगा ये y,
25 आ जाएगा ना ये 4/5 4/5 इंटू 8/14 ठीक है। अब इसके और इसके मिली इक्विवेलेंट सेम होंगे तो वो क्या इक्वेशन हो जाएगी x इंटू 1 इज y इंटू 2 हो जाएगा 4/5 इंटू 8/6। समझ में आई ये प्रॉब्लम अप्रोच? बोलो कोई डाउट? So let's start now attempting some problems. First some direct simple one and then these type of long problems. Booklet है ना सबके पास? So take out booklet. Start attempting these problems first. Home assignment 1, problems 3 and 4. Home assignment 3, problems 2, 3, 4. Get equipped to ITJE 3 and 21 and then passage 2. हुए HA1 के हो गए दोनों? उसमें डाउट है किसी को? HA3 कोई डिस्कस करना है? जब ये अटेम्प्ट कर लो HA1 डिस्कस करते हैं चलो। HA1 का थर्ड प्रॉब्लम दिया है 1 mole ferric oxalate is oxidized by X moles MnO4 minus 1 mole of ferrous oxalate is oxidized by Y mole. X और Y निकालने ठीक है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है 1 मोल फेरिक है फेरस है फेरिक ऑक्सीलेट का फॉर्मूला क्या होगा ये है फेरिक ऑक्सीलेट ठीक है। इसको हम ऑक्सीडाइज इसको किससे रिएक्ट करा रहे हैं MnO4 माइनस MnO4 माइनस के कितने मोल्स लग रहे हैं यहाँ X n फैक्टर्स बस निकालने का प्रॉब्लम है ये n फैक्ट इससे क्या बनेगा आयरन किस स्टेट में है +3 आयरन तो इससे ज्यादा एक्सीड कर नहीं सकती है ये मैक्सिमम है। ऑक्सलेट का आई टोल्ड यू ऑक्सलेट से क्या बनता है C2O4 2 माइनस से क्या बनता है CO2 एक n फैक्टर इसका कितना था 2 एक ऑक्सलेट का और इसके एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सलेट है 3 तो कितना हो गया इसका n फैक्टर 6 इसका होता है 5 एसिडिक मीडियम दिया नहीं है नहीं दिया होता है तो जनरली हम लोग एसिडिक मीडियम ही लेते हैं। क्या होगा इसकी इक्वेशन 1 into 6 is x into 5 सेकेंड दिया है फेरस ऑक्सलेट फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला FeC2O4 इसका 1 मोल और अब पर मैग्नेट के कितने मोल्स हैं Y n फैक्टर 5 इसमें अब n फैक्टर क्या होगा ऑक्सलेट तो एक ही है उसका 2 और आयरन इज इन +2 स्टेट आयरन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू +3 तो आयरन से 1 आएगा और 2 ऑक्सलेट से तो टोटल कितना हो गया 3 क्लियर ये क्लियर है सबको फिर से इक्वेशन लिखो 1 into 3 is y into 5 x upon y ढूंढना है दोनों को डिवाइड कर दो क्लियर और फोर्थ प्रॉब्लम भी शायद हो ही गया है। फोर्थ प्रॉब्लम में नंबर ऑफ मोल्स के MnO4 टू रिएक्ट विद 1 मोल FeC2O4 इन एसिडिक मीडियम मतलब y पूछा है तो हाउ मच इज y 3/5 क्लियर।
HA3 भी डिस्कस कर ले, अटेम्प्ट कर लिया है सबने? हाँ, HA2 का सेकंड क्वेश्चन। HA डाउट्स करेंगे बाद में, अभी जो प्रॉब्लम्स दिए वो डिस्कस करेंगे। HA3 का ही तो सेकंड क्वेश्चन। हाँ, HA3 तो करने जा रहे हैं, ये नोट कर लो। HA3 का सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्या रिएक्शन दिया है? एक सॉल्ट का सॉल्यूशन सोडियम सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है। ओके, दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके लिए क्या दिया इंफॉर्मेशन? 50 ml 0.1 मोलर, 50 ml 0.1 मोलर। और ये किससे रिएक्ट कर रहा है? एक सल्फाइड सॉल्यूशन से। सल्फाइड के लिए कितना दिया है? 25 ml 0.1 मोलर। ठीक है, सल्फाइड वाले की हाफ रिएक्शन दी है। इन दैट यू कैन सी सल्फर इज गोइंग फ्रॉम +4 स्टेट टू +6 स्टेट, है ना? तो उसका इन फैक्टर कितना हो गया? 2, और इसका इन फैक्टर हमें मालूम नहीं। मिली इक्विवेलेंट्स विल बी सेम, तो 50 into 0.1 into n factor will be 25 into 0.1 into 2। इससे इसका n फैक्टर आ गया 1, और n फैक्टर होता क्या है? मॉड ऑफ डेल्टा ON, करेक्ट? सल्फाइड में यू कैन सी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग, सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, इट मींस दिस सॉल्ट विल बी गेटिंग रिड्यूस्ड, करेक्ट? मतलब इसका डेल्टा ON विल बी डेफिनेटली नेगेटिव, so that means delta ON of this is -1। अब तुम्हें दिया है स्टार्टिंग में इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3 और फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। डेल्टा ON इज फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस इनिशियल, तो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2, करेक्ट? हाँ, n फैक्टर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। वो तो अगर एक जब रिएक्शन नहीं दी है, ये तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जब रिएक्शन होती है तब तो n फैक्टर इज मॉड ऑफ डेल्टा ON फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। बट इसके लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कितने मेटल के एटम्स के सॉल्ट में। तो दिया हुआ है ना सब कुछ, देखो लास्ट लाइन में पढ़ो, इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन द सॉल्ट वाज 3, तो 3 से 1 कम हुआ, दैट विल गिव यू 2। एटम्स तो नहीं पता ना सर कितने एटम्स के मेटल। एक एटम तो होगा ना मिनिमम मेटल का, यस सर। एक हुआ तो एक से ज्यादा होगा तो फ्रैक्शनल आंसर आने लग जाएंगे, वो ऑप्शन में है नहीं तुम्हारे पास। सपोज 2 एटम्स होते हैं, 2 एटम्स में एक का डिक्रीज हो रहा है, मतलब हर एटम में हाफ का डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब फिर 3 से फाइनल आंसर वुड बी 2.5, वो ऑप्शन में ही नहीं है। क्लियर? सर हमने ये अज्यूम किया कि सॉल्ट में जो अनायन है उसका डेल्टा ON 0 है। हाँ, the oxidation change is occurring only in metal, क्योंकि उसी की इंफॉर्मेशन दी है ना तुम्हें, हाँ सर। एनायन के बारे में कुछ बताया ही नहीं है।
Third problem. In titration of K2Cr2O7 and ferrous sulfate. हाँ तो K2Cr2O7 इसका एन फैक्टर तो we discussed always was 6 and this is reacting with ferrous sulfate V2N2. Ferrous sulfate is FeSO4. In FeSO4 only iron can get oxidized from +2 state to +3. N factor will be 1. So the equation will become M1V1 into 6 is M2V2 into 1. Clear? आयरन +2 स्टेट में है ना? हाँ सर। आयरन ऑक्सीडाइज हो सकता है +3 में। डाइक्रोमेट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी चीजें ऑक्सीडाइज हो सकती हैं वो कर देगा। सल्फेट में सल्फर इज ऑलरेडी इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6, तो सल्फर कैन नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड एनी फर्दर। फोर्थ प्रॉब्लम, an element A in a compound ABD has an oxidation number of An minus. It is oxidized by dichromate in acidic medium. तो An minus रिएक्ट कर रहा है डाइक्रोमेट से। डाइक्रोमेट के 1.68 मिलीमोल्स यूज हो रहे हैं और एबीडी के 3.26 मिलीमोल्स यूज हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ए का ढूंढना है आफ्टर ऑक्सीडेशन। इसका एन फैक्टर 6, इसका मालूम नहीं। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? 3.26 इंटू एन फैक्टर विल बी 1.68 इंटू 6। कितना आ जाएगा ये एन फैक्टर यहाँ से? 3। करेक्ट। और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इट विल बी इंक्रीजिंग। तो पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? N माइनस, उसमें 3 ऐड हो जाएगा। सो फाइनली A माइनस N से इट विल बी गोइंग टू A माइनस N प्लस 3। क्लियर? चलो गेट इक्विप्ड के ये प्रॉब्लम्स कंप्लीट करो। थर्ड, 21st एंड पैसेज 2। And then we will move to subjective exercise. Get equipped का थर्ड प्रॉब्लम आ गया है। 21st डिस्कस करते हैं। 20 ml thiosulfate solution requires 30 ml of 0.01 dichromate. Na2, no, sorry, not thiosulfate, Na2SO3। एक मिसप्रिंटिंग है, उसको सही करो 21st में। Na2SO3 है ना? Na2SO3 से इट इज बिकमिंग Na2SO4 होना चाहिए। दोनों साइड Na2SO3 लिखा है, करेक्ट? Na2SO3 is getting oxidized to Na2SO4। क्या इन फैक्टर हो जाएगा इसका? +4 से सल्फर इज गोइंग टू +6। इन फैक्टर इज ऑफ 2। और इसके कितने मोल्स हैं? 20 ml। मोलैरिटी मालूम नहीं। एन फैक्टर 2 विल बी मिली इक्विवेलेंस ऑफ डाइक्रोमेट 30 into 0.01 और डाइक्रोमेट का एन फैक्टर फिक्स्ड है 6। करेक्ट? सॉल्व करके मोलैरिटी मिल जाएगी।
सेकेंड पैसेज 2 पे आते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन 79.75 grams of copper sulfate sample containing some inert impurity is reacted with Ki. Liberated iodine is reacted with thiosulfate in basic medium where it oxidizes to sulfate and I2 reduces to I minus. ठीक है? What is percentage purity? तो हमारे पास एक Ki का सैंपल है, इसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं कॉपर सल्फेट के सैंपल से CuSO4. Ki से क्या बनेगा I2 और तीसरा CuSO4 से क्या बनेगा Cu+1. आयोडीन ऑक्सीडाइज होगा -1 से 0, कॉपर रिड्यूस होगा +2 से +1. ठीक है? और ये जो आयोडीन लिबरेट हुई इसको हम लोग किससे रिएक्ट करा रहे हैं थायोसल्फेट से H2O3 2- और इस थायोसल्फेट से क्या बन रहा है अब सल्फेट बन रहा है SO4 2-. इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों को. इसके मोल्स निकालने मान लो x मिलीमोल्स. ठीक है? इन फैक्टर क्या होगा इसका 1 +2 से +1 जा रहा है ना. इसका इन फैक्टर क्या होगा इस रिएक्शन में -1 से 0, 1 का चेंज और इसके एक मॉलिक्यूल में 2 आयोडीन 2. और इस रिएक्शन में वापस I- बन रहा है 0 से -1. करेक्ट? तो 2 दोनों रिएक्शन में सेम है, तो डायरेक्टली हम इसके मिली इक्विवेलेंट्स और इसके मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर सकते हैं. करेक्ट? इसके लिए क्या इंफॉर्मेशन दी है 50 ml 1 मोलर. और एन फैक्टर क्या हो जाएगा देखो सल्फर 2 की स्टेट से 6 की स्टेट में जा रहा है, तो एक सल्फर में 4 का चेंज और इसके एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर है 2, तो चेंज 8. करेक्ट? इसका एन फैक्टर 8. तो डायरेक्टली इसके और इसके मिली इक्विवेलेंस इक्वेट करते हैं. 50 into 1 into 8 will be equal to x into 1. क्लियर? तो कितना आ गया x 400 मिलीमोल्स. तो वेट कितना हो गया इसका कॉपर सल्फेट का 160. 400 बाय 1000 मोल्स में कर लो पहले. और मॉलिक्यूलर वेट कॉपर का अगर 64 मान लो एटॉमिक वेट, तो 160 कितना हो जाएगा ये 64 ग्राम्स. और सैंपल का वेट था 79.75 ग्राम. तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी 64 बाय 79.75 into 100. इसको अगर अप्रोक्सीमेटली 80 मान लें तो दिस विल बी रफली 80% ना. क्लियर? चलो नोट करो. समझ में आया सबको? सेकंड में क्या पूछा है 214 grams of KiO3 reacts with excess Ki, produces I2. Now I2 is reacted with thiosulfate. What is the volume of thiosulfate needed? पहले हमारे पास है KiO3, इसको रिएक्ट कराया Ki से, प्रोडक्ट बना I2, I2 को रिएक्ट कराया थायोसल्फेट से, ठीक है. और थायोसल्फेट बेसिक मीडियम में है, थायोसल्फेट से बनेगा सल्फेट और I2 से बनेगा I-.
एन फैक्टर्स लिख लेते हैं जरा सबके। I2 का इस रिएक्शन में एन फैक्टर क्या है? I माइनस बन रहा है 2। थायोसल्फेट का 2 से 6 में इस रिएक्शन में I2 का क्या है फैक्टर? पहले रिएक्शन यस, फर्स्ट रिएक्शन में I2 का इन फैक्टर नो, इट इज नॉट 10। आयोडीन इसे यहाँ पे किस स्टेट में? +5 या 0 या iodine is getting reduced, iodine is getting oxidized। कैसे कैलकुलेट करते थे इन फैक्टर? लास्ट क्लास में 1/Na4 + 1/Na5। तो रिडक्शन वाले का 10, ऑक्सीडेशन वाले का 2, तो 1/10 + 1/2 विल बी 6/10 का इनवर्स। एन फैक्टर है 10/6 और KiO3 का एन फैक्टर कितना है? उसमें 5 से 0 जा रहा है 5। अब इसके और इसके मिली इक्विवेलेंट डायरेक्टली कर सकते हैं क्या इक्वेट? नहीं, क्योंकि एन फैक्टर अलग है। KiO3 कितना है? 214 ग्राम और KiO3 का मॉलिक्यूलर वेट भी 214 है, यानी KiO3 के कितने मोल्स हैं? 1 मोल। इसके x मोल्स मान लेते हैं और थायोसल्फेट का वॉल्यूम दिया है, मोलैरिटी दी है 1 मोलर। इसका वॉल्यूम निकालना है। इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट करते हैं। 1 × 5 इज x × 10/6। तो x कितना मिल गया यहाँ से? 3। करेक्ट। फिर इन दोनों के करते हैं। 3 × 2 is 1 × V × 8। तो V कितना मिल गया? 6/8 liters। Correct? You can convert that into milliliters। आ गया सबको समझ में? नोट। चलो थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। 1.66 grams of Ki is reacted with excess IO3. ICl is produced. You have to find how much KiO3 is reacting and how much ICl has been produced. तो अब किसका किसका रिएक्शन हो रहा है? KiO3 Ki and the product is ICl। ठीक है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी है हम लोगों को? 1.66 ग्राम्स KI का मॉलिक्यूलर वेट 166। So 1.66 grams is nothing but 10 millimoles। इसके मान लो x मिलीमोल्स और इसके y। x और y निकाल लें, बस n फैक्टर्स हम लोग को लिखना है। इसका एन फैक्टर क्या होगा? -1 से +1 2। यहाँ पे +5 से +1 4। और इसके लिए कैसे लिखेंगे? इसमें रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। 1/4 + 1/2 का इनवर्स, सो दैट विल बिकम 4/3। 1/2 + 1/4 का इनवर्स। करेक्ट। सबके मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे, तो x × 4 is y × 4/3 is 10 × 2। तो इससे x कितना आ जाएगा? 5 और y कितना आ जाएगा? y कितना आएगा? 15। करेक्ट। In order to estimate ozone in air,
22.4 liter of air at NTP is taken. That means it will be 1 mole air. Is passed through Ki, O2 is evolved and I minus is oxidized to I2. Liberated iodine requires this much thiosulfate in acidic medium. What is composition of ozone? इसमें थोड़ा सा इन फैक्टर कैलकुलेशन क्लियर रखना है. O3 है, इसको रिएक्ट करा रहे हैं Ki से, I2 लिबरेट हुआ, I2 को रिएक्ट करा रहे हैं थायोसल्फेट से. ठीक है. O3 से क्या बनेगा वो थोड़ा सा क्लियर करना है. O3 से 2 मॉलिक्यूल्स तो O2 बनेंगे और एक ऑक्साइड बनेगा O2 माइनस. तो यहाँ पे तीनों ऑक्सीजन्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे 2 का 0 और 1 का -2 है. तो इसका इन फैक्टर यहाँ हो जाएगा 2. Ki का इन फैक्टर 1, I2 का 2, इस रिएक्शन में भी 2. तो डायरेक्टली हम इसको और इसको इक्वेट कर लेंगे. थायोसल्फेट का एसिडिक मीडियम में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एन फैक्टर इज 1 और थायोसल्फेट के लिए इंफॉर्मेशन है 200 ml 0.1 मोलर. तो डायरेक्टली और इसके अगर x मिलीमोल्स मान लें तो डायरेक्टली इसको और इसको इक्वेट करते हैं. x into 2 is 200 into 0.1 into 1. So x we will get 10 millimoles. तो 1 मोल एयर में 10 millimoles ओजोन है. So what will be the percentage of ozone? 1%. Clear? So can you repeat the last part? ओजोन 10 मिलीमोल्स आया ना. तो मोल्स ऑफ ओजोन आर 10 raised to -2 and moles of air were 1. तो percentage of ozone will become 10 raised to -2 by 1 into 100. That is 1% ozone. Subjective exercise problem 17. Try to make the table and write n factors. These are slightly long and tough problem. These type of problems used to come when the JEE paper was subjective. Let's practice them. अभी भी एक passage type में these problems can come. Subjective exercise problem 17. Read it carefully and try to make the table. Write n factors of all the things involved. बना 17 का टेबल. n फैक्टर्स आ गए सारे. देखो सिस्टमैटिकली स्टार्ट करते हैं. क्या क्या है स्टार्टिंग में हमारे पास मिक्सचर में CuS Cu2S. यही है ना 2 चीजें. करेक्ट. और किससे रिएक्ट करा रहे हैं इसको? K2 Cr2O7. K2Cr2O7 का फैक्टर कितना होता है? 6. इसमें तो कोई डाउट अब होना ही नहीं चाहिए, हर जगह 6 होना चाहिए. इन लोग का फैक्टर लिख लेते हैं CuS और Cu2S का. क्या बन रहा है इनसे? 6 और 8. कॉपर जा रहा है +2 स्टेट में और सल्फर जा रहा है SO2 में. CuS में कॉपर किस स्टेट में है? +2. तो कॉपर में तो कोई चेंज नहीं हुआ. सल्फर किस में है? कितना चेंज हुआ? 4 में है ना ये. 6. Cu2S में कॉपर किस स्टेट में? +1. किस में जा रहा है? +2. तो कॉपर में 1 का चेंज. और कितने कॉपर है? 2. तो टोटल 2. और सल्फर किस में है? -2 से +4 6. तो 6 का सल्फर में और 2 का कॉपर में, टोटल 8. क्लियर?
इसके बाद भी कुछ डाइक्रोमेट बचा रह गया, उसको किससे रिएक्ट कराया है? The excess oxidant was reacted with 50 ml Fe2 plus solution. तो Fe2 plus के 50 ml से रिएक्ट किया। Fe2 plus किस में जा सकता है? केवल Fe3 plus में, and factor will be 1. और इसकी मोलैरिटी नहीं मालूम है, लेट्स से इसकी मोलैरिटी है m. आगे क्या दिया है? 25 ml ऑफ सेम Fe2 plus, इसी मोलैरिटी के Fe2 plus अगर 25 ml लिया होता, उसको हम लोग किससे रिएक्ट करा रहे हैं? KMnO4 से, MnO4 माइनस 0.875 मोलर 20 ml, 0.875 मोलर 20 ml. KMnO4 का एसिडिक मीडियम में फैक्टर 5. इसके मिलीमोल्स x मान लेते हैं, इसके y मिलीमोल्स. और K2Cr2O7 की क्या इंफॉर्मेशन दी है? 100 ml 1.25 मोल. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस लिखना. इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट सेम होंगे, करेक्ट? इससे क्या इक्वेशन मिलेगी? 25 into m into 1 is 0.875 into 5 into 20. तो कितना आ जाएगा है यहाँ से? 87.5 by 25, correct? That will be 3.5. अब इन तीनों के टोटल मिली इक्विवेलेंस इसके बराबर होंगे. कितने होंगे इसके? 6x, इसके 8y, इसके 50 into 3.5 into 1. This total will be 100 into 1.25 into 6. Correct? तो ये हो जाएगा 750, ये 175. तो 6x plus 8y is 575. Clear? और एक इक्वेशन दी हम लोग को इंफॉर्मेशन की इन दोनों का टोटल वेट 10 ग्राम से, करेक्ट? तो इसका कितना वेट हो जाएगा x मिलीमोल्स का? x by 1000 और मॉलिक्यूलर वेट CuS का वी कैन टेक कॉपर 64, सल्फर 32, तो 96 प्लस y by 1000 into 160 is 10. तो इससे इक्वेशन आ जाएगी 96x प्लस 160y is 10,000. इस इक्वेशन में 20 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24x is equal to 1150. Clear? 1500. 20 मल्टीप्लाई किया है ना, 75 into 1500. तो x की वैल्यू आ गई 1500 by 24. ये CuS के मोल्स हो गए, तो वेट कितना हो गया CuS का? 1500 by 24 into मॉलिक्यूलर वेट 96 by 1000. क्लियर? 4 हो जाएगा 6 ग्राम. तो 60% CuS, 40% CO2S. क्लियर है? बुकलेट में पीछे जो आंसर दिया है वो स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि उसमें कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 लिया है, करेक्ट? नाइनटीन्थ प्रॉब्लम. Some amount of AgNO3 of 50% purity is dissolved in 50 ml water. It is treated with 50 ml Ki solution
AgI is precipitated, excess Ki is titrated with KiO3. So we have AgNO3 and this is reacting with Ki. And excess Ki, the remaining Ki is reacting with KiO3 and producing ICA. ठीक है? एंड फैक्टर्स लिख लेते हैं। AgNO3 और Ki का जब रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा? AgNO3 plus Ki gives AgI plus KiNO3. This is not a redox reaction. किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। इस सिचुएशन में all of these are acting as salts. And for salts, N factor is charge on cation और anion. तो इस रिएक्शन में दोनों का N factor 1 लेकिन इस रिएक्शन में Ki is going to ICA from -1 to +1. इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पे इसका N फैक्टर हो गया 2। तो सेम कंपाउंड का अलग अलग रिएक्शन में N फैक्टर अलग अलग है। तो इमीडिएटली वी विल ब्रिंग मोल्स। तो वी विल अज्यूम कि यहाँ पे A मिलीमोल्स रिएक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे B। क्लियर? और Ki कितना यूज कर रहे हैं? 50 ml। मोलैरिटी दी है इसकी? नहीं दी है। और उधर ये 50 ml 0.1 मोलर, इसकी मोलैरिटी m मान लेते हैं, इसके x मिलीमोल्स। आगे एक और इंफॉर्मेशन दी है 25 ml ऑफ सेम Ki, इसी मोलैरिटी का Ki का 25 ml requires 30 ml 0.1 molar KiO3 30 ml 0.1 molar to produce ICA. इसका N factor 2, इसका 4। तो पहले इन दोनों को इक्वेट करते हैं। 25 into 2 into m is 30 into 0.1 into 4। तो कितना हो जाएगा ये? m आ जाएगा 12/50। क्लियर? अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो b into 2 is 50 into 0.1 into 4। तो b कितना आ जाएगा यहाँ से? 10। इन दोनों को इक्वेट करते हैं। x into 1 is a into 1। तो a is equal to x। और टोटल a plus b will be equal to 50 into 12/50। करेक्ट? 50 into m। तो a plus b आ गया 12, b 10 है तो a आ गया 2, तो x is 2। तो AgNO3 के 2 मिलीमोल। तो वेट कितना हो गया AgNO3 का? 2/1000 into 170, that is 0.34 grams। और सैंपल में AgNO3 सिर्फ 50% था, तो पूरे सैंपल का क्या वेट हो जाएगा? इसका ट्वाइस 0.68 ग्राम। क्लियर है? So now for homework, complete home assignment 3 and subjective exercise में भी जो redox titration के problems हैं, correct? Next class we will do acid base titrations. Okay?